Hello here. So in this video, I am going to discuss briefly about the disease called bronchial asthma. So before studying the topics, we have to know about the disease, that like where the asthma occurs and which portion of the body attack to this disease. Like our body part, lungs, इसमें attack होता है. So at first, before knowing about the disease, हमें lungs के बारे में complete knowledge होना चाहिए. So for that reason, I am going to show an picture to clarify the complete knowledge about lungs. Here you can see this is the complete picture of lungs. So the upper side of lungs, it's called larynx, and larynx के ठीक नीचे ही ट्रैकिया रहते हैं. If you see to the left side of the picture, here you can see the left lobes of the lungs. इसको कहते हैं left superior lobe and इसको कहते हैं left inferior lobe. नाउ हम लोग इस बार राइट साइड में आएंगे, जिसको अपर साइड के राइट पोर्शन को कहते हैं राइट सुपीरियर लोब. देन हियर यू कैन सी राइट प्राइमरी ब्रोंकी. देन हियर यू कैन सी secondary bronchi. Here you can see the terminal bronchi. So terminal bronchi उसे कहते हैं जहाँ पे bronchioles का एंड हो जाता है, मतलब कि इससे ज़्यादा bronchioles नहीं है, यहाँ तक कि bronchiole का एंड होता है. So here you gonna see right inferior lobe and the middle side of the right inferior lobe, it's called right middle lobe. Here having an zoom microscopic picture of the right inferior lobe. It's called respiratory bronchiole. अगर इसको जूम करने का दिखाया जाए तो पता चलेगा कि इसमें बायल टाइप का शेप रहता है, जिसको जनरली द मेडिकल टंग कहते हैं एल्वियोल्स. एंड अगर एल्वियोल्स के अंदर देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा एक नाली, जिसको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स. द मीनिंग ऑफ डक्ट इज नाली, जिससे एयर पासेज होता है. नाउ वी विल मूव टू द अनदर पिक्चर to gain complete knowledge about the lungs, or we must say respiratory system. Here you see the red line. Through this the inhalation occurs, मतलब इससे सांस लेते हैं, and the blue line is inhalation or expired air, means CO2 excretion होता है. So here you gonna see the picture of lungs, जिसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकी. If you go down to the picture, then here you see the bronchi, मतलब कि इस पोर्शन को कहते हैं ब्रोंकी. एंड यहाँ से टर्मिनल एंड तक जाएंगे, मीन्स कि लंग्स की शेष पर तक जाएंगे, तो इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. हेयर द डोनेटेड ब्रोंक्यूल्स. दिस साइड इज राइट लंग्स एंड दिस साइड इज लेफ्ट लंग्स. सो हेयर अगर आप नीचे आएंगे तो ब्रोंकियल ट्यूब का माइक्रोस्कोपिक जूम है, जिसमें कंप्लीट पिक्चर आप लोग देख सकते हैं.
ए ब्रोंकियल ट्यूब जिसको एल्वियोलर डक्ट भी बोलते हैं. दिस वन इज कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट एंड इसको बोलते हैं alveoles. Here they are located alveoles. So here we see the passage of airway. These two pictures. This one is for normal people and this one is for asthmatic people. Means जिसको asthma का attack होता है. So here you see the smooth muscle for the normal people. मतलब कि जिसको asthma का attack नहीं है and blood vessel. And बीच के portion को बोलते हैं lumen and here the white portion is called mucosal lining. If we move to the asthmatic picture of the airway, then you go to see the diameter means जो खाली पोर्शन है लुमेन का वो कम हो गया है, डिक्रीज द लुमेन डायमीटर एंड स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है. सो एयरवे ठीक से पासेज नहीं होगा एंड ब्लड वेसल में भी इन्फ्लेमेशन आ गया है. मीन्स द स्वेलिंग और रेडनेस मीन्स द ब्लड वेसल फूल गया है जिसकी वजह से एयरवे पासेज में दिक्कत हो रहा है. इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग दिख जा रहा है एस्थमेटिक पर्सन में. दैट मीन्स ड्यू टू the region of reduction of mucus clearance, the density of mucus also increases this white portion so that the airway do not pass clearly. So like जो mucus clearance होता है वो रिड्यूस हो जाने की वजह से उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से एयरवे ठीक तरीके से पास नहीं हो पाता एंड एस्थमा देखा जाता है जिससे ब्रीथलेसनेस फील होता है, मतलब सांस नहीं आता है एस्थमेटिक पेशेंट को. नाउ वी मूव टू द अनदर पिक्चर ऑफ एस्थमेटिक डिजीज. हियर यू सी द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ एन ब्रोंक्यूल. दिस इज द नॉर्मल पिक्चर एंड दिस इज asthmatic person picture of muscle. Here you see the muscle is very thin and the diameter is very big so that the airway pass very clearly. And if you look at the asthmatic airway passage, then you see the airway inflammation is narrowed, so the density is increased and the diameter of passage airway is decreased. So ठीक तरीके से हवा जा नहीं सकते जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है. सो टाइटनेस भी आ गया मसल में. दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टेकिंग प्लेस. दैट्स व्हाई द वेसोडाइलेशन डज नॉट ऑकर्स एंड इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग और रेडनेस भी देखा जा सकता है एस्थमेटिक पेशेंट में. हियर यू सी द मसल too much thinner to the normal people and for the asthmatic patient the muscle diameter is increased so the airway did not pass. Here you see the complete picture of a normal people and asthmatic people airway passage tube. Now we move to the topic of asthma. The definition of asthma is non-communicable chronic lung disease and it's characterized by airway inflammation. Means the way where the airway passage means the bronchiole जहाँ से हवा या फिर एयर आना जाना रहता है लंग्स के अंदर, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखा जाता है. इन्फ्लेमेशन मीन्स रेडनेस और स्वेलिंग. दैट मीन्स द प्लेस वेयर एनी इन्फेक्शन टेकिंग प्लेस और द वाइड रेंज occurs in the duct of bronchioles, then the airway did not passage clearly. So then the asthma taking place and airway obstruction mainly due to muscle spasm. And ये जो बोलना चाहता है कि लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या फिर ब्लॉकेज हो जाता है डक्ट एयरवे ब्रोंक्यूल्स डक्ट का ड्यू टू मसल स्पैज्म, क्योंकि मसल का डैमेज होने की वजह से ब्रोंक्यूल्स में जो ब्लॉकिंग हो जाता है एयर पैसेज के, उसकी वजह से अस्थमा होता है. There is having some incident of asthma. The first one is the incident of asthma has increased in both developed and developing country from 1970 to 2000. So asthma
का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 1970 से बहुत ज़्यादा इन both developed and developing country. Developed country means like USA, UK and the developing country like Bangladesh, India. यहाँ पे भी means both type of country में अस्थमा का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. The toxicity of asthma increased 61% over the last 2 decades. Decade means 1 decade means 10 years, 2 decade means 20 years. So the asthma percentage increase हुआ है 61% लास्ट 2 decade में. अस्थमा इज लीडिंग क्रोनिक इलनेस अमंग ऑल चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों में जितने सारे डिजीज होता है उसमें अस्थमा क्रोनिक इलनेस है मीन्स अस्थमा सबसे ज़्यादा भयंकर तरीके से अटैक करता है. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड पॉइंट. अस्थमा रिजल्ट इन 10 मिलियन लॉस्ट स्कूल डेज एंड 3 मिलियन लॉस्ट वर्किंग. दैट मीन्स कि अस्थमा डिजीज की वजह से 10 मिलियन स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पाते एंड 3 मिलियन लोगों ने अपना काम खोया है. And death from asthma increased 31% since 1980. Means मरने का हार या डेड होने का हार 31% इंक्रीज हो गया है 1980 से. एंड 77% ऑफ अस्थमा बीन इन चिल्ड्रेन लेस देन 5 years. मीन 77% अस्थमा देखा जाता है 5 ईयर्स से कम बच्चों में. ईयर्स होगा. Then we will move to the pathophysiology. There is variable degree of airway obstruction related to bronchospasm, edema and hypersecretion. That means the hypersecretion of mucus that blockage the lumen of airway passage through that the asthma taking place and bronchial hyperresponsiveness और जो ब्रोंक्यूल्स का डक्ट रहता है उसका हाइपर मीन्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मतलब कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाने की वजह से भी अस्थमा देखा जाता है. एंड एयरवे इन्फ्लेमेशन एज वी सेड इन प्रीवियसली दैट एयरवे पैसेज डक्ट में ब्रोंक्यूल्स के इन्फ्लेमेशन आ जाता है मीन्स स्वेलिंग आ जाता है वो जगह ब्लॉकेज टाइप का आ जाता है. दैट्स वाई अस्थमा टेकिंग प्लेस. In acute inflammation, acute means that will be effective for less time but it effectively very toxically means एक कम टाइम के लिए रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है. Inhaled allergen in allergen patient. So those patient having allergy and allergen medication लेते हैं cause early phase allergic reaction with activation of cell bearing allergic specific immunoglobulin antibody. Means जिसको एलर्जी रहते हैं वो अगर एलर्जिक मेडिसिन ले ले देन उसका स्पेशल सेल इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाता है. एंड आफ्टर रैपिड एक्टिवेशन एयरवे मास्ट सेल एंड मैक्रोफेज रिलीज प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सच एज हिस्टामिन एंड इकोसिनोइड. दैट मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन ई और आईजीई के एक्टिवेशन हो जाने के बाद मास्ट सेल एंड मैक्रोफेज रिलीज करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर. दोज आर histamine and eicosanoids. And these two inflammatory mediator, histamine and eicosanoid, that induce contraction means a contract कर देता है the airway smooth muscle mucus secretion and vasodilation. means airway smooth muscle को contract कर देते हैं जिसकी वजह से एयर पैसेज ठीक तरीके से नहीं हो पाता ब्रोंकियल्स डक्ट में and mucus secretion को भी contracted कर देते हैं. And also vasodilation also constructed. Vasodilation constructed mean dilation mean increase the duct diameter increase. So its contraction means the dilation को vaso जो duct है alveolus का उसकी duct को contract कर देते हैं जिसकी वजह से एयर पैसेज ठीक तरीके से नहीं हो पाता. That's why asthma taking place. Plasma protein leakage induced thickened and edematous airway wall. So if द प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज मीन्स जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो लीकेज हो जाता है वो इंड्यूस्ड करता है मीन्स वो एक काम करता है जो थिकेंड एंड एडिमेटियस कर देते हैं एयरवे वॉल को मीन्स जो ब्रोंकियोलस डक्ट है उसको थिक कर देता है एंड जिसकी वजह से नैरो ऑफ लूमेन एंड जो लूमेन है जिसके अंदर से एयरवे पैसेज होता है वो नैरो हो जाता है विद रिड्यूस ऑफ म्यूकस क्लियरेंस क्योंकि म्यूकस क्लियरेंस जो रहता है और रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से म्यूकस वाइड रेंज में फैल जाता है एल्वियोलर डक्ट में एंड
दैट्स वाई एयरवे ठीक तरीके से पास नहीं हो पाता एंड जिसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। लेट फेज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑकर्स 6 to 9 आवर आफ्टर एलर्जेन प्रोवोकेशन एंड जो इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग और रेडनेस आता है धीरे धीरे वो 6 से 9 घंटा बाद आता है एलर्जेन प्रोवोकेशन मीन्स एलर्जेन बॉडी में एक्टिवेट होने के बाद एंड इसमें रिक्वायरमेंट होता है इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट एंड एक्टिवेशन की मतलब कि सक्रियकरण की जरूरत है और इओसिनोफिल टी लिम्फोसाइट बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल मीन्स इओसिनोफिल मीन्स जो WBC रहती है WBC के अंदर रहते हैं ग्रानुलोसाइट लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट एंड ग्रानुलोसाइट के अंदर रहता है न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। सो न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बेसोफिल एंड टी लिम्फोसाइट के जरूरत पड़ता है सक्रियकरण के। सो एंड इओसिनोफिल माइग्रेट टू एयरवे एंड इओसिनोफिल जो रहता है WBC के अंदर वो माइग्रेट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन और स्थानांतर कर जाता है एयरवे में मीन्स ब्रोंकियल्स डक्ट में एंड रिलीज इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स एंड ए रिलीज करता है मतलब कि निकालता है इन्फ्लेमेटरी मीन्स स्वेलिंग और रेडनेस मीडिएटर्स जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकियल डक्ट्स में एंड अस्थमा होता है। एंड अनदर पैथोफिजियोलॉजी इज T lymphocyte activation linked to release of cytokinin means if the T lymphocyte activate हो जाता है then it's lead करता है releasing में cytokinin releasing में from type 2 helper and a type 2 helper mediate करता है allergic inflammation means allergic swelling or redness interleukin means IL-5 IL-4 and IL-13 and conversely type 1 helper प्रोड्यूस करता है IL-2 means interleukin 2 and interferon gamma that are essential for the cellular defense mechanism. All those things means interferon, IL-4, IL-5, IL-13 and conversely type 1 helper IL-2 and interferon gamma that everyone is essential means all the things are essential for the डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर मीन सेल के डिफेंस के लिए सब की जरूरत है एंड एलर्जिक अस्थमेटिक इन्फ्लेमेशन में रिजल्ट फ्रॉम इम्बैलेंस बिटवीन TH1 एंड TH2 सेल। अगर टाइप 1 हेल्पर सेल 1 एंड टाइप 1 हेल्पर 2 सेल के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है देन एलर्जिक अस्थमा देखा जा सकता है ह्यूमन बॉडी में एंड देयर इज हैविंग अनदर वन रीजन फॉर अस्थमा दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर like factor may also increase the risk of asthma such as a changing in house that means if anyone change their house frequently and air pollution like anyone work in a air polluted area like means अगर किसी के घर अर्बन एरिया में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी चलते हैं या फिर किसी का घर केमिकल इंडस्ट्री के आसपास है उस जगह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा निकलते हैं जिसकी वजह से एयरवे डक्ट के अंदर और ब्रोंकियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाइल्ड रेंज में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से एयर पैसेज नहीं हो पाता जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस फील होता है एंड अस्थमा होता है एंड मोर हाइजेनिक फैक्टर लाइफ स्टाइल मीन्स हाइजेनिक भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अस्थमा को मेंटेन करने के लिए। सो अस्थमा को मेंटेन करने के लिए हाइजेनिक भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल मूव टू द कॉन्टामिनेशन लाइक what is the main factor of allergens asthma like if anyone having allergens then उस पर्सन को अस्थमा हो सकता है। इफ एनीवन हैव अपर रेस्पिरेटरी वायरस देन उसको भी हो सकता है अस्थमा एंड इफ एनीवन डू ओवर एक्सरसाइज उसको भी हो सकता है अस्थमा। देन एनीवन वर्किंग इन कोल्ड एयर और जिसको कोल्ड एयर के पास ज़्यादा रहता है मतलब कि ठंडे हवा में उसको भी अस्थमा होने का चांसेस है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड ड्रग मतलब जिस मेडिसिन के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड रहता है जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स मेनली यूज होता है एंटी हाइपरटेंशन के वजह से एंटी हाइपरटेंशन की मेडिसिन के लिए। सो इफ एनीवन हैविंग अस्थमा एंड आल्सो हाइपरटेंशन देन वी शुड नॉट गिव दैट पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा एंड हाइपरटेंशन दोनों एक साथ रहते हैं तो उसको बीटा ब्लॉकर्स नहीं देना चाहिए। उसकी जगह हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं हाइपरटेंशन के जैसे एम्लोडिपिन एंड ऑल्सो हम लोग उसका
अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो उसको एस्पिरिन नहीं दे सकते, लाइक एस्पिरिन इज एंटासिड, ये भी हम लोग नहीं दे सकते, उसकी जगह दे सकते हैं प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, लाइक एग्जांपल पेंटोप्राजोल। और अभी बहुत ज़्यादा फेमस है पेंटोप्राजोल, पैंटी के नाम से, उसको भी यूज़ कर सकता है बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से बस। लेकिन if the person having asthma, then the person should not use beta blockers and aspirin. And if the person taking too much stress, means बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से या चिंता करने से भी अस्थमा होने का चांसेस रहता है। सो स्ट्रेस इज ए वेरी डेंजरस फैक्टर of causing asthma or many other diseases. And paint fume, if anyone working in a fume industry like painting और कलरिंग, देन उसको भी अस्थमा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देन वी विल मूव टू द अनदर टॉपिक, क्लिनिकल मैनेजमेंट लाइक साइन एंड सिम्टम्स। द मतलब कि कैसे पता चलेगा कि इसको अस्थमा हुआ है, साइन एंड सिम्टम्स। The first sign and symptoms is the primary symptoms of asthma are where attack an episode of shortness of breath. If the asthma is attack, then breathing में प्रॉब्लम आता है, मीन्स सांस लेने में दिक्कत आता है। एंड द सेकेंड पार्ट इज टाइपिकल स्टोमक चेस्ट टाइटनेस, मीन छाती में बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होता है या दर्द होता है। रेस्टलेसनेस मीन्स थकान रहता है शरीर में बहुत ज़्यादा। एंड ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है। एंड कॉफ भी निकलता है, लाइक कॉफ। एंड द थर्ड वन इज इन सम केसेस कॉफ इज मे बी द ओनली ऑन सिम्टम्स, मतलब कुछ कुछ केस में सिर्फ कॉफ निकलना ही अस्थमा का एक सिम्टम्स है। एंड कॉफ विद और विदाउट म्यूकस प्रोडक्शन, इफ कॉफ लाइक ब्लडी कॉफ निकल रहा है, उसको भी अस्थमा के हिसाब से हम लोग पहचान सकते हैं। देन डायग्नोसिस फॉर अस्थमा, कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि इसको रियली अस्थमा है। सो द फर्स्ट वन, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट चेस्ट टाइटनेस एंड कॉफ एंड विजिंग। इफ द पेशेंट हैविंग चेस्ट टाइटनेस मीन्स अगर छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, काफिंग हो रहा है एंड विजिंग हाँची आ रहा है, देन इसको हो सकता है अस्थमा है। एंड द सेकेंड वन इज पेशेंट में हैव फैमिलियर हिस्ट्री ऑफ चेस्ट टाइटनेस, मतलब कि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा कि उसकी फैमिली में किसी को एलर्जी है या फिर अस्थमा है। दिस टाइप का अगर डिजीज है देन उसको अस्थमा होने के चांसेस है। एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज और कोल्ड एयर प्रेसिपिटेशन डिस्पेनिया एंड इंक्रीज सिम्टम्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक एलर्जिक सीजन, मीन्स एलर्जिक एक सीजन आता है लाइक द टाइम ड्यूरिंग विंटर, जहाँ पे ओवर एक्सरसाइज करने से, बहुत ज़्यादा शरीर चर्चा करने से या ठंडे हवा लेने से भी अस्थमा होने की चांसेस है। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मीन्स विदाउट टेकिंग मेडिसिन हाउ टू वी कैन ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा, मीन्स बिना ट्रीटमेंट और बिना मेडिकेशन के कैसे अस्थमा को हम लोग कम कर सकते हैं। अवॉइडिंग ऑफ नोइंग एलर्जिक ट्रिगर कैन इंप्रूव सिम्टम्स, मीन्स जो एलर्जिक सिम्टम्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। रिड्यूस मेडिकेशन यूज एंड डिक्रीज ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि मेडिसिन को यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए जिससे कि ब्रोंकियल मतलब कि एल्वियोलर डक्ट का हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा सक्रियकरण हो जाए। एंड द सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल ट्रिगर like animal should be avoided in sensitive patient. Those who having high bronchial asthma, वो like अभी बहुत ज़्यादा लोग घर में क्यूट दिखाने के लिए डॉग या कैट पेटी कैट रखते हैं, उसको भी नहीं रखना चाहिए इफ एनीवन हैविंग सेंसिटिव अस्थमा। एंड द लास्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज स्मोकर शुड बी आल्सो एनकरेज क्वाइट इट आल्सो अवॉइडेड, मीन्स स्मोकिंग से भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है अस्थमा का और ब्रोंकियल लंग्स का। सो स्मोकिंग को भी अवॉइड करना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा अस्थमा को कमाने के लिए। Then we will move to the pharmacological treatment. Pharmacological treatment means with medication how we can control the bronchial asthma. Like at first we see oxygen, giving oxygen to keep oxygen saturated. 95% in all children with asthma who's facing difficulty in breathing interference, taking, eating and breakfasting. Means 95% से ज़्यादा बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करता है बात करने में और कभी खाने में, उसको ऑक्सीजन एक्सटर्नली देना चाहिए जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन वी विल मूव टू द फार्माकोथेरेपी ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा। Here you see quick relief. If any person needed urgent bronchospasm relief, used to acute attack to relieve bronchospasm as when needed, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुका है, तुरंत ज़रूरत है, then we should give that patient those medicine like salbutamol, terbutaline
adrenaline and amiophylline. दिस मेडिसिन कैन गिव क्विक रिलीफ, मतलब कि तात्कालिक रिलीफ दे सकता है पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा से. देन लॉन्ग टाइम सिम्टम रिलीफ, मतलब कि बहुत दिन तक सिम्टम्स को धीरे धीरे कम करने के लिए ये सब मेडिसिन यूज करना चाहिए. यूज टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म फॉर लॉन्गर टाइम, लाइक जो मेडिसिन आर साल्मेटरॉल, फॉर्मेटरॉल एंड बाम्बुटरॉल. ये तीनों मेडिसिन धीरे धीरे अस्थमा को ठीक करता है एंड इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम रहता है. इफ मेथड ऑफ डिलीवरिंग नॉट अवेलेबल साल्ब्यूटामॉल, मीन्स अगर इनहेलेशन फॉर्म में साल्ब्यूटामॉल अवेलेबल नहीं है, देन गिव ए सबकॉटिनियस इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन, मीन्स इमीडिएटली एक इंजेक्शन देना चाहिए एड्रेनालिन का, और 0.01 ml पर kg, मीन्स kg के हिसाब से 0.01 ml देना चाहिए एड्रेनालिन का इंजेक्शन तुरंत. मीन्स इफ ए पर्सन इज वेट इज 50 kg, then we have to give that patient 50 into 0.01, देन कैलकुलेट करके उस इंसान को एड्रेनालिन का इंजेक्शन इमीडिएटली देना पड़ेगा. एंड द मैक्सिमम लेवल विल बी 0.3 ml, मतलब कि 0.3 ml से ज़्यादा एड्रेनालिन का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए. इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर 15 मिनट्स, अगर ये इंजेक्शन देने के 15 मिनट बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ पेशेंट में, देन रिपीट द डोज ऑन्स, मीन्स एक बार सेम डोज फिर से देना पड़ेगा पेशेंट को. देन मैग्नीशियम सल्फेट इंटरवेनस, मीन्स इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट में प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट इन चिल्ड्रन विद सेवरल एस्थमा ट्रीटेड, मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट एडिशनली कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट देता है ब्रोंकियल अस्थमा में. ट्रीटेड विथ ब्रोंकोडायलेटर, मीन्स ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ देने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है चिल्ड्रेन में मैग्नीशियम सल्फेट. इट गिव 50% ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मीन्स 50% मैग्नीशियम सल्फेट देना चाहिए ब्रोंकोडायलेटर एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ. देन अगर ये दिया जाए तो बच्चों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा. नाउ वी विल मूव टू द ब्रोंकोडायलेटर. ब्रोंकोडायलेटर मेनली 3 टाइप्स. ब्रोंकोडायलेटर मीन्स की ब्रोंकियल्स को डायलेशन करता है, मीन्स ब्रोंकियल का जो नाली का जो डायलेशन है उसको बढ़ा देता है, जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंस्ट्रक्शन से डायलेशन में ले आती है, जिसकी वजह से एयर पासेज बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है. लाइक these 3 types, the first one is sympathomimetic, the second one is methyloxanthin derivative, and the third one is anticholinergics. Here the sympathomimetic is selective beta agonist, and the beta agonist having 2 types, salbutamol and tarbutaline, and the methyloxanthin is 2 types, amiophylline and theophylline, and the anticholinergic is having 3 drugs here noted, that atropine, paratropium and tiotropium. Now we will discuss briefly about the selective beta 2 agonist salbutamol. तो salbutamol children older than 12 years, जो बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा होता है, उसको 2 to 4 mg और 3 to 4 टाइम इन डे, मीन्स 2 से 4 mg मेडिसिन डोज 3 से 4 बार देना चाहिए दिन में, एंड मैक्सिमम 8 mg देना चाहिए 4 टाइम एक दिन में. एंड बड़े इंसान के लिए और एडल्ट पर्सन के लिए 2 mg 3 to 4 टाइम ए डे, मीन्स 2 mg देना चाहिए 3 से 4 बार इन डे, मैक्सिमम 8 mg 4 टाइम, मैक्सिमम 8 mg देना पड़ेगा 4 टाइम इन डे. एंड चिल्ड्रेन फॉर 6 to 12 ईयर, जिसको उम्र 6 साल से 12 साल के अंदर है, उसको 2 mg देना पड़ेगा 3 से 4 टाइम, एंड मैक्सिमम डोज 24 mg पर डे. देन वी विल गो टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेलेक्टिव बीटा 2 agonist. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेलेक्टिव बीटा 2 agonist? इज ए sympathomimetic that stimulate the beta adrenergic receptor in the lungs. So beta 2 agonist is a sympathomimetic that stimulate, means उत्साहित कर देते हैं और एक्साइटेड कर देता है बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को लंग्स में. सो रिजल्ट इन रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल. सो द ब्रोंकियल स्मूथ मसल है उसको रिलैक्सेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से डायलेशन आता है ब्रोंकियल डक्ट में एंड एयर वे पासेज अच्छे से तरीके से होते हैं. द थेराप्यूटिक इफेक्ट मीन्स जो फंक्शन है इस सिम्पैथोमाइमेटिक्स बीटा 2 एगोनिस्ट साल्ब्यूटामॉल की, रिलीफ ब्रोंकोस्पाज्म, मीन्स रिलीफ करता है ब्रोंकोस्पाज्म में, एंड रिड्यूस एयरवे रेजिस्टेंस, मीन्स जो हवा अटक जाती है एल्वियोलर में उसको ठीक करता है, जैसे एयर और हवा अच्छे से जा पाए लंग्स के अंदर से एल्वियोलर से, सो दैट द पर्सन विल फील रिलीफ. देन विल मूव टू द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट. रैपिडली विल एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट,
मीन्स ए अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती है जीआई ट्रैक्ट में, मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ग्रैंडुअली एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्रोंकी एंड थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है ब्रोंकियोस में लंग्स के एंड आफ्टर इनहेलेशन मीन्स इनहेलेशन करने के बाद एंड इज मेटाबोलाइज इन लीवर, मेटाबोलाइज होता है लीवर में एंड देयर इज हैविंग सम एडवर्स इफेक्ट मीन्स साइड इफेक्ट ऑफ दिस साल्ब्यूटामॉल बीटा 2 एंटागोनिस्ट लाइक हेडेक मीन्स सर में दर्द, नौसिया मीन्स वोमिटिंग के पहले जो वोमिटिंग होने वाला है ऐसा भाव रहता है एंड रेस्टलेसनेस मीन्स टायर्डनेस फील होता है, नर्वसनेस मीन्स बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है एंड बीपी चेंज मीन्स ब्लड प्रेशर में भी चेंज आ सकती है ये मेडिसिन लेने की वजह से। नाउ वी विल मूव टू द अनदर part of bronchodilator that is methyloxanthin derivative. The example of methyloxanthin derivative is aminophylline. So adult children older weight more than 45 kg means बड़े आदमी बच्चे एंड बूढ़े आदमी जिसका वेट 45 kg से ज़्यादा है उसको 380 mg पर डे डिलीवरी डेली एवरी 6 to 8 आवर मीन्स हर दिन 6 से 8 घंटे के बाद 380 mg एमिनोफिलिन देना चाहिए एंड अगर ये टॉलरेंट हो गया कुछ दिन तक देन और डोज इंक्रीज करना चाहिए 507 mg तक 6 से 8 घंटा के लिए। अगर ये भी टॉलरेट कर लिया देन इंक्रीज करना चाहिए 760 mg तक, फिर सेम डोज 6 to 8 आवर आफ्टर देना चाहिए। एंड फॉर थियोफाइलिन ओनली फॉर एडल्ट, थियोफाइलिन सिर्फ एडल्ट के लिए देना चाहिए, ये बच्चे या बूढ़े के लिए काम नहीं करता। इट मैक्सिमम डोज विल बी 400 mg मीन्स मैक्सिमम 400 mg से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमिनोफाइलिन ए xanthin डेरिवेटिव दैट एक्ट एज ए ब्रोंकोडायलेटर, ए ब्रोंकोडायलेटर इसे काज करता है मीन्स ब्रोंकियोस को डायलेशन करता है जिसकी वजह से एयर पासेज होता है बाय डायरेक्टली रिलैक्सेशन स्मूथ मसल मीन्स स्मूथ मसल जो है ब्रोंकियोस में उसको रिलैक्सेशन करते हैं और ब्रोंकियल एयरवे एंड पाल्मोनरी ब्लड वेसल मीन्स ब्रोंकियल एयरवे ब्रोंकियोस का जो एयर पासेज है एंड पाल्मोनरी ब्लड वेसल मीन्स लंग्स का जो ब्लड वेसल है उसको रिलैक्सेशन करते हैं जिसकी वजह से एयर पासेज अच्छे तरीके से होते हैं एंड एस्थमा कुछ हद तक नियंत्रण में आ जाती है और कंट्रोल में आ सकती है। द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा रिलीफ ब्रोंकोस्पाज्म एंड इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी मीन्स ब्रोंकोस्पाज्म से रिलीफ देता है एंड इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी मीन्स हवा ट्रांसफर के बढ़ा देता है लंग्स में। एंड here you can see the pharmacokinetics. Aminophylline is rapidly convert into theophylline means एमिनोफाइलिन खुद से थियोफाइलिन में भी कन्वर्ट हो सकती है या फिर चेंज हो सकता है। द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ थियोफाइलिन इज अर्ली अमंग सिमिलर पोटेंट इन कैन नॉट प्रिडिक्टेड बाय नेम एज 6 बॉडी वेट। सो थियोफाइलिन को हर एक के लिए एक समान डोज होती है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाता बॉडी वेट से या एज से या सेक्स से। एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ये मुंह से इनहेलर फॉर्म में लेने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। देयर इज ऑल्सो हैविंग सम साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइलोजैंथिन लाइक नॉसिया लाइक वोमिटिंग के पहले जो फील होता है एंड रेस्टलेसनेस मीन्स टायर्डनेस फील होना। एंड here you see the anticholinergic drugs. The example of anticholinergic drugs is ipratropium bromide and tiotropium bromide. So here you see produce bronchodilation only in cholinergic mediated bronchoconstriction. If अगर cholinergic medication की वजह से bronchoconstriction होता है मीन्स सांस लेने में दिक्कत आती है देन ये रिलीफ दे सकता है एंड एक्सेप्ट दिस थिंग्स ये रिलीफ नहीं दे सकता है। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स बेसिकली लेते हैं ग्लोकोमा को ट्रीटमेंट करने के लिए। सो एंटीकोलिनर्जिक ओनली गिव रिलीफ टू दोज पेशेंट हु हैविंग एस्थमा फॉर द रीजन ऑफ कोलिनर्जिक मेडिकेशन एंड एंटीकोलिनर्जिक आर इफेक्टिवली ब्रोंकोडायलेशन बट नॉट एज इफेक्टिव एज बीटा एगोनिस्ट। एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह मीन्स साल्ब्यूटामॉल की तरह इतना इफेक्टिव नहीं है। दे डू नॉट ब्लॉक एलर्जी एंड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। अगर एस्थमा एलर्जी की वजह से होता है और फिर ओवर एक्सरसाइज मतलब ओवर शरीर चर्चा की वजह से होता है तो उसमें रिलीफ नहीं दे सकता। इन हाइपरट्रोपियम ब्रोंकोडायलेशन इज सीन विद इन 30 सेकंड एंड 50% मैक्सिमम रिस्पांस ऑकर विद इन द 3 मिनट्स मींस अगर हाइपरट्रोपियम दिया जाए पेशेंट को सो रिलीफ मिल जाता है 30 सेकंड के अंदर 50% पेशेंट को एंड मैक्सिमम टाइम लेता है 3 मिनट तक। सो हाइपरट्रोपियम ब्रोमाइड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 48 आवर मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मीन्स हाइपरट्रोपियम का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है 4 से 8 घंटे तक एंड द टियोट्रोपियम ब्रोमाइड हैज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर। टियोट्रोपियम का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है जो काम करने का सर्वाधिक टाइम रहता है वो 24 आवर तक रहता है। नाउ विल मूव टू द अनदर ड्रग्स दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड।
सो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो इनहेल फॉर्म में कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहता है, और प्रीफर लॉन्ग टर्म कंट्रोल थेरेपी फॉर अस्थमा, जो और बहुत टाइम तक अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है, बिकॉज ऑफ कॉन्सिस्टेंट एंड पोटेंशियली इफेक्टिवनेस, क्योंकि ये समान तरीके से और सिमिलर वे में ब्रोंकियल अस्थमा को कंट्रोल करता है। मोस्ट पेशेंट विद moderate disease can be controlled with twice daily dosing. Some produce have once daily dosing, means किसी डोज 2 बार दिन में लेना पड़ता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, और कभी किसी डोज एक टाइम भी लेने से हो जाता है, एंड कभी किसी डोज रिक्वायर्ड मल्टीपल टाइम, मीन्स किसी डोज को मल्टीपल टाइमिंग भी लेना पड़ता है, मीन्स 2 टाइम से ज़्यादा भी लेना पड़ता है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन इनहिबिट स्टेरॉइड रिसेप्टर बाइंडिंग, मीन्स जो स्वेलिंग और जो रेडियस इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकियल्स के अंदर, वो इनहिबिट कर देता है, मीन्स मतलब ब्लॉकेज कर देता है और रोक देते हैं स्टेरॉइड रिसेप्टर बाइंडिंग, स्टेरॉइड रिसेप्टर बाइंडिंग जो फंक्शन होता है उसको ब्लॉकेज कर देते हैं। इसके लिए कभी कभी 2 से 3 टाइम भी लेना पड़ता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के। पेशेंट शुड बी स्टार्ट हायर एंड मोर फ्रीक्वेंट डोजेज, मीन्स पेशेंट को स्टार्टिंग के टाइम में हायर डोज एंड मोर फ्रीक्वेंटली, मीन्स ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है। वंस कंट्रोल हैज अचीव, मीन्स एक बार अस्थमा कंट्रोल में आ जाए, देन ट्रैप डाउन द डोज, देन डोज को रिड्यूस कर देना चाहिए। सिम्टम्स इंप्रूव इन सम पेशेंट विद इन द फर्स्ट 1 to 2 वीक्स, मीन्स कभी कभी सिम्टम्स इंप्रूव होता है पेशेंट के अंदर पहले 2 हफ्ते में, और रीच मैक्सिमम इंप्रूवमेंट, मीन्स सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है 4 to 8 वीक के अंदर। सो द एग्जाम्पल ऑफ corticosteroid inhaler are budesonide, which can be taken 90 to 180 mcg. 1 mg equals to 1000 mcg. एंड द सिस्क्लोसोनाइड भी लेना चाहिए 80 to 160 mg, एंड फ्यूलोसोनाइड लेना चाहिए 80 mcg. Then systemic corticosteroid, like here is the example of systemic corticosteroid are hydrocortisone, pyridoxine, methylpyridoxine and dexamethasone. So every 20 minutes for 3 to 4 dose, means हर 20 मिनट के बाद 3 से 4 डोज लेना चाहिए। शुड बी एडमिनिस्टर विद इन 1 आवर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मीन्स प्रिस्क्राइब करने के 1 घंटे के अंदर 20 मिनट बाद 3 से 4 डोज लेना चाहिए दोज मेडिसिन ऑफ corticosteroid. Adults are treated effectively within 5 to 7 days, means adult को 5 to 7 days का कोर्स देते हैं इस मेडिसिन का, एंड फॉर चिल्ड्रन रिक्वायर्ड ओनली 3 to 5 days इज एनफ, मीन्स चिल्ड्रन के लिए 3 से 5 दिन का डोज एनफ रहता है। इन IV थेरेपी मीन्स इंटरवेनस थेरेपी ऑफर नो एडवांटेज ओवर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, मीन्स इंजेक्शन कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देता है। दिस टाइप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, मीन्स जो मुंह से लेना है। अगर पर्सन आर नॉट कैपेबल टू टेक इन ओरली, मीन्स ओरली लेने से अगर कैपेबल नहीं है, देन ओनली वी शुड एडमिनिस्टर इन IV रूट। देन we will move to another drug, that is leukotriene modifiers. So leukotriene modifiers are also one of the most important drugs for allergic asthmatic bronchial asthma. So the drugs are Zefarleucost, Aciclovir and Montelukast singularis are the leukotriene receptor antagonists that reduce the pro-inflammatory and bronchoconstriction effect. So a leukotriene रिड्यूस कर देता है, मीन्स घटा देता है प्रो इन्फ्लेमेशन, मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और रेडनेस अगर आ जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ जाता है ब्रोंकियल अस्थमा की एल्वियोलर डक्ट में, उसको कंट्रोल कर सकता है, एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को भी रोध करता है, मतलब एयरवे पासेज अगर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, उसको भी घटा सकता है और कम कर सकता है। इन परसिस्टेंट अस्थमा दे इम्प्रूव पल्मोनरी फंक्शन, सो ए पल्मोनरी फंक्शन को मीन्स लंग फंक्शन को और एल्वियोलर फंक्शन को और ब्रोंकियल फंक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये मेडिसिन। सो इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर the bronchial asthma. However, they are less effective than low dose inhaled corticosteroid, means ये लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी कम इफेक्टिव है। देन here you see they are not used to treat acute exacerbation, means acute exacerbation डिजीज के लिए नहीं यूज कर सकता है, मस्ट बी टेकन रेगुलर बेसिस। अगर ये डोज लेना शुरू कर दे एक बार, सो इसको रेगुलर बेसिस में लेना चाहिए, इवन ड्यूरिंग द सिम्टम्स फ्री पीरियड। अगर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, सिम्टम्स नहीं है ठीक तरीके से, देन ऑल्सो ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। नाउ यू विल सी द डोज एंड द फ्रीक्वेंसी। सो जेफरलुकास्ट लेना चाहिए एडल्ट के लिए, मीन्स जो बनेंस है उसके लिए 20 mg डेली 2 टाइम लेना चाहिए, एंड फॉर चिल्ड्रन दोज एज 6 to 11 ईयर्स उसको लेना चाहिए 10 mg 2 टाइम डेली।
it can be taken 1 hour before or 2 hour after meal. So Zufalugast 1 घंटा खाने से पहले या 2 घंटा खाने के बाद लेना अच्छा रहेगा. नाउ हेयर यू सी द अनदर ड्रग्स इज मोंटेलुकास्ट. मोंटेलुकास्ट लेना चाहिए एडल्ट के लिए 10 mg वन डेली, मीन्स 10 mg लेना पड़ेगा एक टाइम डेली. टेकिंग इवनिंग विदाउट रिगार्डिंग फूड, मीन्स खाने का परवाह नहीं करना चाहिए, खाने से पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं. ये एक टाइम ही लेना पड़ेगा इवनिंग को, मीन्स इवनिंग को एक टाइम लेने के से ही हो जाएगा काम. एंड फॉर चिल्ड्रन दोज एज 6 to 14 years 5 mg चेबल टेबलेट, मीन्स 5 mg में चबाने के जो टैबलेट आता है उसको लेना पड़ेगा मोंटेलुकास्ट. सो दिस इज द knowledge of bronchial asthma and all the treatment I mentioned in this video. You can go for it and improve your knowledge and you will learn about the medicine of bronchial asthma. Thank you for listening this video carefully.